اور یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی موزوں سبجیکٹ پہ آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے، رول آف میڈیا ان دا ڈیموکریٹک ورلڈ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قلم مضبوط ہے تو ہواؤں کے رخ بدل دیتا ہے، اور جب وہ بک جاتا ہے تو زمین پہ ایک بوجھ ہوتا ہے۔ ہم نے یہی دیکھا ہے۔ ہم تو اس وقت کی صحافت کو جانتے ہیں، ہم نے پڑھا اور دیکھا۔ نہرو جی نے ایک اخبار نکالا پیسہ کمانے کے لیے نہیں، گاندھی نے اخبار نکالا ذہنوں کو بدلنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں۔ مولانا آزاد نے البلاغ کھولا پیسہ کمانے کو نہیں۔ آج کی صحافت اور آج کا میڈیا مہاجن کھول رہا ہے دولت کمانے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کیسے سمجھ جائے کہ ہم کس ملک میں ہیں اور کہاں ہیں۔ یہ پوری دنیا کا دستور ہے۔ اردو صحافت میں آج خالد اکبر صاحب موجود ہیں، بہترین صحافی ہیں، ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے۔ ملت ٹائمس نے بھی اردو صحافت کو سمجھا۔ صحافت وہ چیز ہے، میڈیا وہ چیز ہے جس کو سب سے پہلے ہمارے یہودیوں نے سمجھا۔ خلافت عثمانیہ کی تباہی کا باعث سب سے پہلے انہوں نے وہاں ایک اخبار نکالا۔ آپ کو تعجب ہوگا اس اخبار کا نام حماس تھا، جو وہاں کی زبان ہے، اور وہاں سے انقلاب شروع کیا۔ پوری سلطنت الٹ کے رہ گئی۔ آج پوری دنیا میں حاکم کون ہے؟ یہودی صحافت میڈیا کے دنیا کے جو سب سے بڑے جو گروپ ہیں وہ سب یہودیوں کے پاس۔ اور جب یہ RSS نے سمجھ لیا کہ میڈیا کی اہمیت کیا ہے، تو ہماری زمین جب سے ہندوستان پہ قبضہ ہوا، ہماری زمین جہنم بن گئی۔ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ میڈیا کا رول کیا ہے۔ ہماری قوم خاص طور سے اس مسئلے پہ رہی کہ مسجد کی میناروں پہ لائٹیں کتنی لگائی جائیں اور شادی بیاہ میں پیسے کتنے خرچ کیے جائیں۔ ان کی یہ سمجھ میں آئی نہیں کہ میڈیا ہی ذہنوں کو بدلتی ہے، میڈیا ہی انسان سے وحشی بناتی ہے اور وحشیوں کو انسان بناتی ہے۔ یہ اتنا اہم رول ہے، اور ملت ٹائمس نے جس طریقے سے ترقی کی ہے اس ملک میں، جب پیسہ کمانے والے، جب یہ الیکٹرانک میڈیا آیا جس کو ہم لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، یہ کس کے پاس ہے؟ ان تاجروں کے پاس ہے جنہوں نے دولت کمانے کا دستور بنا لیا ہے۔ ان کو لگا کہ یہ اخبارات اور یہ چینل ہم اپنی دولت کے سہارے قبضہ کر لیں گے۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہندوستان کے ہمارے بھائیوں کو، اور جس طرح کا ماحول تیار ہوا۔ ہمیں یاد ہے اپنے جوانی میں، بچپن میں، اردو کا ایک اخبار ماجد دریابادی صاحب کا نکلتا تھا، سکھ جدید۔ ایک بوسیدہ سے کاغذ پہ کالی روشنائی سے تحریر ہوتی تھی، وہ سینوں کو چیر دیتی تھی، ایک راہ دکھاتی تھی۔ قومی آواز ایک اخبار نکلتا تھا، ایک بوسیدہ سے اخبار پر، کاغذ پر، وہ دلوں کو چھوتا تھا، حقائق کو بیان کرتا تھا، ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، مظلوم کے لیے چلاتا تھا۔ آج کئی کلر کے اخبارات نکلتے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ان کا اثر جو اس زمین پر، اس سماج پر پڑا ہے، اس کی ہم نے توجہ ہی نہیں کی، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ اور جس ملک میں میڈیا کمنل ہو جائے، ایک طرفہ ہو جائے، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہو، قلم ڈلزنے لگے، اس سماج کا ہونا کیا ہے؟ سلامت ہیں، ابھی بہت سے لوگ ہیں، بات ہماری یہ بہن بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں، یقینی طور میں آپ کے سینے میں درد اٹھتا ہے جب آپ آئے، اور یہ آخری لڑائی ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم بہت اچھے ہیں، میں بالکل مولانا
अमीर जमात की बात से मुतफिक हूँ। कम से कम मैंने तो अपनी जिंदगी में तस्वुर भी नहीं किया था कि यहाँ सच कहने वाले लोग खामोश हो जाएंगे, चुटकी लग जाएगी उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, मजलूमों के आंसू नहीं दिखाई पड़ेंगे, उनके सीने में दर्द नहीं उठेगा। जब इंसान लंच होगा उसके घर में जाके ये कहा जाएगा कि तुमने खाया क्या है, अखबार छापने को तैयार नहीं। हकीकत यह है कि जो अभी बयान किया गया, वो फिल्म एक्टर जिसके ऊपर अटैक हुआ है, वो हेट क्राइम है, कहने की हिम्मत नहीं है किसी में। मैं समझता हूं इस वक्त एक जो सोशल मीडिया पे जो काम हो रहा है, आप लोग काम कर रहे हैं इसलिए नहीं, इसकी दूसरी तरफ एक आंधी वो लोग भी कर रहे हैं। मैं कल लखनऊ से आया, मेरे जहाज में मैं बगल में मेरी उम्र के आसपास के साहब बैठे थे, उनको कहीं से पता लगा कि शायद मैं कभी सियासी रहा हूं, तो उन्होंने बैठते के साथ ही राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और जितने हैं सबको बुरा भला कहना किया। मैंने कहा ठीक है आप जो कहें। फिर मैंने उनसे कहा कि कम से कम हमारे पास तो आइए, हमसे पूछिए, तो हमसे इंटरेक्शन तो करिए। हमको तो आप मकान नहीं देते, हमें घर नहीं बुलाते, हमने क्या गलतियां की हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि हम लोग मुसलमानों को देते तो हैं। गाजियाबाद में आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैंने कहा बताइए। कहते साहब हमारे एक दोस्त ने एक मुसलमान औरत को अपना मुलाजिम रखा था और वो खाना पकाती थी, और कहने के जब वो आटा गूंथती थी तो उसमें अपना पेशाब डालती थी। मैंने कहा खुदा का खौफ, डरिए। कहा नहीं साहब मीडिया में है, देखिए आप, ये तस्वुर कीजिए आप। फिर उन्होंने कहा कि साहब वो संभल में एमपी ने ऐसी खतरनाक तकरीर करी। मैंने कहा भाई वहां जो फसाद हुआ वो एमपी तो मेरे साथ बेंगलोर में था पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में, और मैंने उसे वापस भेजा, अपनी गाड़ी का इंतजाम किया कि एयरपोर्ट जाओ, वहां दंगा हो गया। कहने के नहीं साहब आपको पता नहीं है, एक रात पहले उसने। मैंने कहा फिर आपने ये भी देखा होगा कि वहां एक जुलूस गया, दूसरे दिन उसने गालियां बकी, वहां हंगामा क्या, ऐसा कभी नहीं हुआ। उस मीडिया का आपको पता जो बैठे बैठे बनाते हैं, और ये सोशल मीडिया उसने एक ऐसा वहम तैयार किया कि वो गुनाह हो गया है। अब मैं इस उम्र में, अपनी आखिरी उम्र में, मुझे जब ये साबित करना पड़ता है कि मैं देशद्रोही नहीं हूं, देशभक्त हूं, तो मरने की तमन्ना पैदा होती है। उस मुल्क में जिसने हमने पूरी दुनिया को ठुकराया, मेरे बुजुर्गों ने अपने खानदान को बांट दिया, उससे पूछा जाता है कि तुम हो हिंदुस्तानी, तुम हो देशभक्त। और ये सिर्फ और सिर्फ रोल जो सोशल मीडिया का है। आप चंद लोग हैं जो लड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी लड़ रहे हैं, उन पे भी मुकदमे हैं। मैं भी 2 FIR झेल चुका हूं 153 की। लेकिन जब एक इंसान तैयार हो जाए, और सहाफत वो है जैसा अभी कहा गया कि हमास में और फिलिस्तीन में जो इस वक्त जो सहाफी काम कर रहे हैं, वो निशानी है सहाफत की, वो निशानी है उन लोगों की जो दुनिया में आज के दौर में दिखाई नहीं पड़ती। और वही ज़बान हमको इस मुल्क में लानी पड़ेगी। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं हैं तो ये मुल्क किस्तों में मर रहा है, ये मर जाएगा। ये कहना गलत है कि हमारा मुल्क बहुत कामयाब है। हम तो नहीं कह सकते, हम तो शर्म आती है हमको कहते हुए। हमको कहते हैं कि हम जमहूरी मुल्क हैं। अरे कहाँ के जमहूरी मुल्क हैं साहब? हम जब पार्लियामेंट में थे तो हम बोलते थे, स्पीकर सुनता था। अब स्पीकर बोलता है और हमको चुप रहना पड़ता है। ये बैठे हुए हैं इमरान प्रतापपुरी, जिस दिन बोलेंगे बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये पार्लियामेंट है। कहते हैं कि हम जमहूरी मुल्क हो गए, सब खत्म हो गया है। उम्मीद सिर्फ आप लोगों से है, आप हजरात से जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। सिर्फ आपको सिर्फ हमसे या अपनी आवाज पहुंचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे बड़े भी लोग हैं जो इस तरह का जहर बोल रहे हैं
इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं, झूठी खबरें छापते हैं और इस तरीके से निकालते हैं कि उनके जहनों में कुछ और रह नहीं गया है। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि साहब हालात ठीक हो जाएंगे। हाँ, अगर मीडिया कामयाब हो गया और मीडिया अगर बिकने से बंद हो गया और मीडिया में अगर कुव्वत आ गई, ये जो अखबार हम खरीदते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये आपका पहला खरीद है? ये अखबार पहले इसे बिक चुका होता है, दोबारा खरीदते हैं। हम दोबारा खरीदते हैं उस अखबार को रोज, क्योंकि वो बिका हुआ अखबार होता है, वो पहले ही से बिक चुका होता है। ये जो इश्तिहारात होते हैं और जो चीजें होती हैं वो उनको खरीद चुकी होती है। ऐसे वक्त में सिर्फ एक मीडिया बचा है। जब आप मजबूत होंगे, वो जुडिशरी जो सब कुछ कहने के बाद हक बात बोलती तो है, लेकिन जब लिखने जाती है तो हाथ उसके लरजते हैं, लेकिन जब मीडिया का खौफ उसके ऊपर आएगा तो वो हाथ उसके भी खत्म हो जाएंगे, वो हिम्मत से काम करेगा। यही वजह है जो पुलिस या इंतजामिया है उसको मालूम है आज कितने लोग जेलों में बाहर हैं, कितने लोग आज भी पड़े हुए हैं। इसी शहर में खालिद जो जेल में है, उसके बाप से, उसके घर वालों से पूछिए, क्या मीडिया ने ऐसी आवाज लगाई कि चलो सड़कों पर, चलो। आज इस दिल्ली के अंदर कभी 500 आदमी खड़ा हुआ कि जिस आदमी पे आज तक इल्जाम नहीं साबित हुआ उसको तुम बेल नहीं देते? लेकिन हम कैसे करें? मैं अगर बोलूंगा तो मेरी घर की दीवारें आवाज सुन लेंगी, लेकिन जब आप बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। जब आप बोलेंगे तो लोगों के दिलों में जुम्बिश पैदा होगी और वो फिर एक तहरीक की शक्ल बनेगी। इनकलाब लाने का जरिया सिर्फ मीडिया है। अगर इनकलाब लाना है, अगर हिंदुस्तान को बचाना है और इंसानियत को महफूज करना है और जालिमों के हाथ को रोकना है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तो फिर मीडिया ही एक रोल बचा है। और मिल्लत टाइम्स को मैं मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि मैं बराबर उनके प्रोग्राम देखता हूँ, उनकी जुर्रत को देखता हूँ और हौसले को देखता हूँ। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन मौका है और अल्लाह आपको और तरक्की दे। और इसी तरह के ऑनेस्ट मीडिया है। मसला ये नहीं है कि कोई मीडिया मुस्लिम मीडिया हो या हिंदू मीडिया हो या मीडिया, ऑनेस्ट मीडिया की जरूरत है। ऑनेस्ट मीडिया जो है उसकी शक्ल में हम खड़े हों। और मैं समझता हूँ आपने बड़ा काम किया है। यहाँ जितने भी हजरात हैं, मैं समझता हूँ ज्यादातर मीडिया के ही लोग हैं। उनको इस बात का समझना चाहिए अब मुल्क तुम्हारे हाथ में है। हम लोगों ने अपनी कोताहियों, अपनी खुदगर्जियों की वजह से अपने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। लेकिन अगर मीडिया के लोग ये बावर कर दें, यकीनी तौर पर हमें मालूम है कि हरिजन अखबार ने जहनों को बदला था। मौलाना आजाद के अखबार हिलाल अल-बिलाग में खून में जोश पैदा कर दिया था, पूरी मिल्लत को तैयार कर दिया था। ये मोहम्मद अली जौहर ने कामरेड अखबार ने क्या क्या इनकलाब किए थे। इस मुल्क को अगर बचाना है तो मीडिया को बचाना पड़ेगा। अगर इस मुल्क को नहीं बचाया, ये कहा गया अभी कि 165-166 मकाम पे हम हैं, और वो इसलिए हैं कि बाकी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा नहीं है जो जिसके नीचे हम हो। दुनिया के वाहिद डेमोक्रेटिक कंट्री हम हैं जिसका 165-166 के नाम पे चलता है। मैं अभी अमेरिका गया था, 15 दिन पहले वहीं था। वहां लोग मुझसे पूछते थे अखबार क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने कहा लिखते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई चाहने को तैयार नहीं है। अखबारात जो है निकलना मुश्किल है। हम लोगों को सबको उम्मीद यही इसी अल्टरनेटिव मीडिया से है। आप उसके एक महम रोल अदा कर रहे हैं और वो सारे हजरात जो यहाँ मौजूद हैं उन सब के लिए जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑनेस्ट मीडिया के हैसियत से इस मुल्क को बचा लें, खुदा बचा लें, नहीं तो इस मुल्क में अब कुछ बचा नहीं है। और मेरे लिए दर्दनाक पहलू यह है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये सोचा भी नहीं था
کہ میں ایسے ملک میں مروں گا جہاں انسان کو انسان مار کر جشن مناتا ہو، جہاں انسان سے انسان مار کر حکومت جی بناتا ہو، جہاں قوم سے نفرت کر کے حاکم بنتا ہو۔ ایسے ملک کا تصور ہم نے تو نہیں کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں صرف اور صرف یہی ایک ذریعہ ہے، اس کے لیے آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا